Hello to all the students of MCOM first year. I am Professor Sonia Digba. Today I welcome to all of you in my YouTube channel. So today we have started our subject for the stand for A group student will be income tax. Income tax. Okay. So in first semester you have to study on the basis of your specialization A group. You have to study. There should be two subjects. First will be advanced accounting, second will be income tax. So first of all today we discuss about the syllabus of income tax. So first of all I will tell you what is your subject name and what is your code for this subject. Whether you fill up your forms, you have to mention correctly your subject code. So in this year the fourth subject of your specialization and in your syllabus will be income tax. Okay, there has been four subject for A group student. Two subject will be compulsory and two subject will be your specialization. So the compulsory subject you have to study is management accounting and strategic management. Both lecture will be started, and the specialization of A group student, there will be the subject of advanced accounting. We will soon started our advanced accounting lecture also, but now we have discussed today on our income tax. So the income tax is your fourth subject and the subject for this subject will be 104. Okay, so first of all I am telling you, in this subject you have to study. In first semester there will be fourth chapter. So the first chapter and their concept you have to study. In this chapter will be, first chapter will be concept and definition about income tax, whether the income tax will be launched, in which year income tax have been formed, and under their regulations, deductions, assumptions, you have to study in this first chapter. So first जो concepts आपको relatedly you have to study in this first chapter will be first contained. First of all I will read that, then I will tell you how many points you have to cover, how many concepts you have to cover, whether you have to study the first chapter. तो फर्स्ट चैप्टर में कौन कौन से कंटेंट्स और पॉइंट्स हैं जो आपको स्टडी करने हैं. द फर्स्ट विल बी history of income tax in India. What kind of history regarding whether the income tax have been launched in India. इनकम टैक्स कब इंडिया में लॉन्च हुआ था, उसकी पुरानी सिचुएशंस क्या है, रूल्स एंड रेगुलेशन कैसे फॉर्म हुए, जब हमने इनकम टैक्स को अडॉप्शन किया, कौन से ईयर में इनकम टैक्स अडॉप्ट किया है इन इंडिया, पर्टिकुलरली द कंट्री विच हैव अडॉप्टेड द इनकम टैक्स in our day-to-day life to calculate the income. So in India, so we have to focus and study that concept in detail way, the history of income tax in India. Second will be, we have to study the introduction of income tax. Introduction of income tax will be the what kind of introduction, कि हम इंट्रोडक्शन की स्टडी करेंगे कि इनको इनकम टैक्स क्या है और उनके कॉन्सेप्ट क्या है, कब लॉन्च हुआ था और ये डायरेक्ट चार्जेबल किस तरीके से है, एंड द एलिजिबिलिटी and what kind of procedure, chargeability. So we have to focus in our first chapter. Okay, so introduction, in the introduction we have to focus that whether the income tax act will be launched, in which year they have been launched. Secondly, the features of income tax, के what kind of feature around, how many features of income tax will we have to study. Third will be, we have the concept which we have to covered in this first chapter is difference between direct and indirect tax. So what kind of difference between direct tax और indirect tax, direct tax क्या है और indirect tax क्या है. So ये इनका difference between we have to study the basic concept कि indirect tax किसके related करता है, direct tax किसके related. So we have to differentiate that in a particular concept. So ये concepts हम लोगों को study कर रहे हैं in a detail way. यहाँ पे सिर्फ
कंटेंट मेंशन करे गए हैं कि आपको इस चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर द कॉन्सेप्ट एंड डेफिनेशन में कौन कौन से कॉन्सेप्ट कवर करने हैं, इस चैप्टर में कौन कौन से आपको पॉइंट्स और जो चैप्टर्स के रिलेटेड कौन कौन से कॉन्सेप्ट हैं, यू हैव टू फोकस ऑन दैट वे. Okay, so the next will be fundamental concept and definition under the Income Tax Act 1961. So okay, so fundamental concept is like definition कि income किस किस sources से related करता है, like income is, if income is related to a person, if income is charged to the business, if income is charged to the other resources, capital gain, so इन पे कितना chargeability rate है, और गिफ्ट एक्सपेंसेस अगर इनकम बिजनेस के रिलेटेड हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं तो उनके कौन कौन से सेक्शन में कितने परसेंटेज में चार्ज होगा. तो इन डेफिनेशन और फंडामेंटल कॉन्सेप्ट में वी हैड टू स्टडी अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंतर्गत इनकम टैक्स एक्ट ने कौन कौन से रूल्स एंड रेगुलेशन, कौन कौन सी चार्जेबिलिटी किस किस के अंडर दिए गए हैं. इफ़ इस सब हाउ वी चार्जेस एडुकेशन चीज़, तो एडुकेशन चीज़ इनकम टैक्स एक्ट ने कितने परसेंटेज में दे हैव टू चार्जेबल. तो ये सारी डिटेल फंडामेंटल कॉन्सेप्ट में, ये सारी जो पॉइंट्स हैं इनकी डिटेल एक्सप्लेनेशन अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स एक्ट हैव बीन मेंशन. सो आई मूव फॉरवर्ड टू अ नेक्स्ट स्लाइड. In first slide we have to discuss then how many points we have to covered in this chapter. So we have only study around कि फर्स्ट चैप्टर में कौन कौन से कॉन्सेप्ट की आपको स्टडी करनी है. तो ये अभी हमने इतने पॉइंट्स देखे. नेक्स्ट स्लाइड में वी हैव टू फोकस कि हाँ रिमेनिंग पॉइंट्स है, और फर्स्ट चैप्टर विल बी टोटली डिपेंडेड ऑन थ्योरी. Okay, so first chapter will be totally dependent on theory. To be very clear, in this fourth chapter the two chapter will be dependent on theory and two chapter will be dependent on practical problems. Okay, so the next content or point or concept we have to study is rates of taxes. के कौन कौन से taxes के उनके rate क्या हैं, के सिटी कॉम्प्लेक्स ट्री अलाउंसेस, ये अलाउंसेस क्या हैं, इनके ऊपर कितना रेट ऑफ चार्जेस है और कितना रेट्स पर चार्जेस करें, एंड बेसिक चार्ज कितना है रेट. सो ये सारे जो कंसेप्ट है, रेट ऑफ टैक्सेस किस किस पे चार्जेबल है, कितने परसेंटेज में चार्जेबल है, एंड द बेसिक चार्ज कितना किया गया है, एंड द एक्चुअल चार्जेस कितना हमें करना है. तो ये सारे जो कॉन्सेप्ट रिलेटेड इनकम टैक्स एक्ट ने ये लॉन्च करे हैं, तो उसी के अकॉर्डिंगली डे टू डे अगर गवर्नमेंट में हम कोई भी टैक्स पे करता है तो उन्हें ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस और ये जो किसके अंडर सेक्शंस क्या हैं, सब सेक्शंस रिलेटेड ही इन सब को अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स एक्ट के तहत ही अपना टैक्स पेड करना पड़ेगा. दे हैव टू फॉलो all the rules regulation which have been regulated by the Income Tax Act 1961, and the 1960 the Income Tax Act will be launched and they have to formulate it. जब उन्होंने ये लॉन्च करने के बाद एक्चुअली इस एक्ट को कौन से ईयर में करा गया, डायरेक्टली 1962 में करा. एंड ये कॉन्सेप्ट हम लोग अपने फर्स्ट चैप्टर में जब भी हम वेदर वी स्टार्टेड अवर फर्स्ट लेक्चर फर्स्ट चैप्टर इन अ डिटेल, ये हम लोग डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू अ कॉन्सेप्ट. ओके, रेसिडेंशियल status and scope of total income. Residential status which shows that if person will stays in India और आउटसाइड इंडिया, तो उनका रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है कि इंडिया में है कि आउटसाइड है. तो रेसिडेंशियल स्टेटस में इन सारी चीज़ों पे फोकस करा जाता है. एंड द स्कोप ऑफ टोटल इनकम दे हैव बी कैलकुलेटेड. इनकम एग्जाम फ्रॉम टैक्स के इनकम कौन कौन सी कितने परसेंटेज में एजम्प्ट हो रही है. इफ़ यू कैलकुलेट, यानी कि बेसिकली अगर आप इनकम फ्रॉम सैलरी कैलकुलेट कर रहे हो सपोज, सो उसमें बेसिक पॉइंट्स में इनकम यानी कि किस किस पे चार्जेबल हो रही है, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस पे चार्ज हो रही है, तो उसकी एजम्प्ट इनकम कितनी है वो फिक्स उन्होंने वहाँ पे मेंशन करेंगे. तो पर मंथ दे हैव बीन चार्जेस ऑन द पर्टिकुलर दैट अमाउंट, तो वही एजम्प्ट इनकम उतनी अकॉर्डिंग टू टैक्स आइटम में से कैलकुलेट होगी.
ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस हैं, बहुत सारे सिटी कॉम्प्लेंसेटरी अलाउंसेस हैं, यूनिफॉर्म अलाउंसेस हैं, तो इन पे कितना अजम्प्ट इनकम है, इफ़ सपोज अजम्प्ट इनकम नील है तो वो भी वहाँ पे क्लियरली मेंशन होगा। तो ये सारे जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ये हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड लास्टली कैपिटल एंड रेवेन्यू। सो कैपिटल मीन्स व्हाट एंड रेवेन्यू मीन्स व्हाट, ये सारे कॉन्सेप्ट हम अपने फर्स्ट चैप्टर में हम लोग देखेंगे। सो इन फर्स्ट चैप्टर यू हैव टू फोकस ऑन दैट कॉन्सेप्ट वेरी डीपली। सो ये सारे कंटेंट्स हैं एंड इन कंटेंट्स और कॉन्सेप्ट को वी हैव टू स्टडी इन अ डिटेल वे. So this is your first chapter. The first chapter will be totally dependent on theoretical. So we will be move to next slide. In next slide we have to study the second chapter. The second chapter will be depend on heads of income. Heads of income you have to study in last TY become you have to study that what kind of heads of income, and this chapter will be partially dependent on theoretical और practical. इस चैप्टर के अंतर्गत आप लोगों को इनकम सारी की सारी जो इनकम टैक्स चार्जेबल करते हैं, किन किन रिसोर्सेज के इनकम्स हम कैलकुलेट करते हैं अकॉर्डिंग टू द टैक्स. सो हेड्स ऑफ इनकम में सारी इनकम पर्टिकुलरली मेंशन होगी, लाइक इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन and capital gains, and the last income from other resources. So ये जो income from salary है, if income from salary किसके ऊपर कैलकुलेट करी जाती है, the income from salary is calculated under which the person who is employed in a particular company or a particular business. or okay, if a person is an employed, अगर कोई काम करता है किसी कंपनी के अंतर्गत तो उसकी बेसिक पे कितना है, बेसिक इनकम कितनी है, तो इनकम फ्रॉम सैलरी इसी बेसिस के ऊपर कैलकुलेट करी जाती है फॉर टू नोइंग देयर स्टाफ सैलरी. ओके, सो इनकम फ्रॉम सैलरी इस बेसिस पे कैलकुलेट करी जाती है. और इस इनकम फ्रॉम सैलरी के बेसिकली आपको थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट में क्या आएगा, द चार्जेबिलिटी, अलाउंसेस एंड टैक्सेबिलिटी, प्री-रिक्विसाइट्स, वैल्यूएशन एंड प्री-रिक्विसाइट, प्रोविडेंट फंड, डिडक्शन फ्रॉम सैलरी कितने पे है. ओके, सो ये थियोरटिकल कॉन्सेप्ट भी हैं और इन्हीं के रिलेटेड प्रैक्टिकली प्रॉब्लम्स आपको इनकम फ्रॉम सैलरीज के ऊपर आएंगी. सो इनकम फ्रॉम सैलरी के अंतर्गत थियोरटिकल पार्ट में आप इनकी चार्जेबिलिटी देखोगे, अलाउंसेस कितने रेट पर चार्ज हो रहे हैं, कौन कौन से अलाउंसेस है, डियरनेस अलाउंसेस है, बेसिक पे के बाद किस में लेस होगा, ऐड होगा. सो ये सारे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आएंगे. टोटली पार्शली अगर हेड्स ऑफ इनकम हम लोग स्टडी कर रहे हैं इस चैप्टर के लिए, तो आपको सारे जितने भी इनकम चार्ज जिस पे भी कर रही है अराउंड लाइक हाउस प्रॉपर्टी के ऊपर भी, तो इसके अंतर्गत भी आपको थियोरटिकल पार्ट की भी स्टडी करनी है, प्रैक्टिकली भी. सो बोथ कॉन्सेप्ट लाइक थियोरटिकल एंड प्रैक्टिकल यू हैव टू स्टडी if you have to score a very good marks in this subject. Okay, so first income from salary, secondly income from house property. Income from house property किसके बेसिस पे चार्ज होगी, on a rented basis, on a self occupied basis, on a deemed basis. house property, if suppose house property क्या करेंगे, अगर आप लोगों का सपोज घर है, इफ़ यू हैव देयर ओन हाउस और इसे किसी रेंटेड बेसिस पे दिया गया है, तो हाउस प्रॉपर्टी को इस इनकम कैलकुलेट कैसे करें, बेसिस पे करेंगे हम अकॉर्डिंग टू द हाउस प्रॉपर्टी. सो इनकम फ्रॉम कैलकुलेटेड from the resources from the house property. If suppose if have been self occupied, let out or deemed to be let out, so that they have been calculated according to the income tax act कि हाउस प्रॉपर्टी के अंतर्गत कितने कौन कौन सी सैलरी नॉट इज क्लासिफाइड द हाउस लैंड. हाउस प्रॉपर्टी कैसे कैलकुलेट करेंगे, द लैंड की जो भी जगह, यानी कि सपोज आपका घर है उसके ऊपर चार्जेबिलिटी कितनी है और उसका सेल्फ ऑक्यूपाइड है. सेल्फली मीन्स इफ़ यू हैव देयर ओन हाउस. लेट आउट प्रॉपर्टी कैलकुलेट किस बेसिस पे करोगे, इफ़ यू हैव देयर ओन हाउस एंड यू हैव गिवन दैट हाउस ऑन अ रेंटेड बेसिस. अगर आपने अपना घर किसी भाड़े पे दिया है तो लेट आउट प्रॉपर्टी में कैलकुलेट होगा. डीम टू बी लेट आउट मीन्स partially used for a house rent purpose, house purpose.
living purpose, and partially you have to let out for your रेंटेड बेसिस. सो ये सारी इनकम इनकी कितनी है. इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में हम ये सारी चीज़ें तीनों बेसिस पे, हमारे लैंड के पर्टिकुलरली हाउस की प्रॉपर्टी को किस बेसिस पे कैलकुलेट करेंगे, रेंटेड बेसिस, हाई सेल्फ ऑक्यूपाइड बेसिस और लेट आउट बेसिस. तो ये इन तीनों फॉर्म्स में हम लोग कैलकुलेट करेंगे. एंड द जो परमिसिबल डिडक्शन कौन कौन सी है, अंडर उनकी चार्जेबिलिटी क्या है, पर्टिकुलरली डिडक्शन चार्जेस अलग रहेंगे. All the incomes deduction and section will be different from other income. Okay, income from salary का deductions और sections अलग रहेंगे, chargeability अलग रहेगी. The income will be calculate, deduction will be calculated of income from salary will be different. House property will be different. House property का deduction कितना रहेगा अंडर सेक्शन 24, सैलरी 16. तो इनका पर्टिकुलरली सेक्शन, इनकम सेक्शंस भी जो कैलकुलेट डिडक्शंस करेंगे, सो वो पर्टिकुलरली दे हैव बीन डिफरेंट फ्रॉम अदर इनकम. ओके, इफ़ इनकम आप किसी के भी ऊपर भी बेसिस पे कैलकुलेट कर रहे हो, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी और इनकम फ्रॉम सैलरी, सो इन सारी पर्टिकुलरली जो इनकम्स हैं इनके डिडक्शन अलग होंगे, सेक्शंस अलग होंगे और इनके डिडक्शन फ्रॉम अलाउंसेस किस किस के बेसिस पे कैलकुलेट होंगे. ओके, हाउस सैलरी के अंतर्गत हम अलाउंसेस कैलकुलेट करते हैं कि स्टाफ को कौन कौन से अलाउंसेस प्रोवाइड करते हैं. हाउस प्रॉपर्टी के अंतर्गत कि पर्टिकुलरली लैंड हमने किस बेसिस पे यूज़ किया, हाउस प्रॉपर्टी है तो हमने किस बेसिस पे यूज़ कर रहे हैं रेंटेड, तो वो कैलकुलेट करेंगे. एंड इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशंस में हम लोग किस चीज़ पे फोकस करेंगे, दैट कि इनकम हम अगर इफ़ सपोज इफ़ सम पर्सन हैव टेकिंग देयर बिजनेस, अगर वो बिजनेस और या प्रोफेशन में काम करते हैं पर्सन, पर्टिकुलरली बिजनेस और प्रोफेशन को किस वे में लेंगे, तो उसका बिजनेस का मीनिंग क्या है, बिजनेस प्रोफेशन किस बेसिस पे वर्क करता है, वोकेशन क्या है उनका. तो ये बिजनेस और प्रोफेशंस के ऊपर इनकम जब हम कैलकुलेट करें कि बिजनेस कौन कौन से इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करते हैं, बिजनेस के अंतर्गत प्रॉफिट एंड गेन्स कैलकुलेट होता है. Okay, so whatever the maintenance of books of account of a business or profession, audit of accounts or allowances or disallowances in a business or profession we have calculated. So income from business and profession, income deductions or sections, they have been different from other sources. Okay, so ये third income है जब it have been calculated. Fourth will be capital gains and capital gains income which have been dependent. इस capital gains में आप लोग कौन सा capital gains जो income है, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, सो ये आपको टोटली अगर फोकस पार्टिशनली थियोटिकल है, थियोटिकल ज़्यादा है इसके अंतर्गत. इस फोर्थ कॉन्सेप्ट में जो ये फोर्थ इनकम है, इस इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इसके अंतर्गत आप लोगों को कैलकुलेट करना है गेन. द गेन मीन्स प्रॉफिट, gain means profit. If gains we have supposed to be using from short term purpose or long term purpose arousing their assets and liability, तो इसकी गेन्स के अंतर्गत एसेट्स के ऊपर कितना हमने प्रॉफिट अर्न किया है, लिएबिलिटीज़ के ऊपर कितना अर्न किया है इन अ शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म बेसिस, तो इसके अंतर्गत हम लोग ये कैलकुलेट करेंगे. मीनिंग टाइप्स ऑफ गेन्स कौन कौन से हैं, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म, अजम्पशन कौन कौन से हैं गेन्स. तो ये आपको थियोरटिकल पार्ट के लिए ये कॉन्सेप्ट आपको ज़्यादा आएगा. द विच हैव बीन फोर्थ इनकम. फिफ्थ एंड लास्ट हेड्स ऑफ इनकम विच हैव बीन calculated under the heads of income will be income from other resources. if अगर इनकम कोई भी पर्टिकुलर पर्सन अदर रिसोर्सेज से अर्न कर रहा है तो वो कौन कौन से रिसोर्सेज हैं, उनकी चार्जेबिलिटी क्या है, उनका डिडक्शंस क्या है और कौन कौन से अमाउंट डिडक्ट नहीं होंगे अदर रिसोर्सेज में. ओके, सो ये इस बेसिस पे इनकम फ्रॉम अदर रिसोर्सेज विल बी द लास्ट कॉन्सेप्ट ऑफ हेड्स ऑफ इनकम. सो इसके अंतर्गत आपको प्रैक्टिकल्स प्रॉब्लम्स आएंगे कि कौन कौन से अदर रिसोर्सेज हैं कि जिससे पर्टिकुलरली पर्सन अर्न करता है. ओके, सो इस चैप्टर में आपको थियोरटिकल एंड प्रॉब्लम्स विल बी वी हैव टू फोकस. प्रॉब्लम्स किस किस के बेसिस पर रहेंगे, थियोरटिकल भी करना है, प्रॉब्लम्स भी करने हैं, लर्न करने हैं आपको. ओके, इन मूव फॉरवर्ड टू नेक्स्ट स्लाइड. इन नेक्स्ट स्लाइड we have to discuss about the third
chapter. We have to discuss about the third chapter. The third chapter will be deduction under chapter or a chapter VAI. VAI. First will be we have to calculate the deduction. So in this slide the third chapter will be mentioned. The third chapter will be deduction under chapter via. Deduction under chapter via. In this chapter deduction you have to study around about the deduction of this रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट के डिडक्शन किस किस पे हेड्स पे कौन कौन सी हैं, उनकी परमिशेबल डिडक्शंस कौन सी हैं अंडर सेक्शन 80. अंडर सेक्शन 80 के अंतर्गत कितनी डिडक्शन आ रही हैं, यानी कि ATC ATD. सो इनके कितनी चार्ज का है कैलकुलेशन एंड द डिडक्शन विल बी चार्जेबल अंडर द इनकम टैक्स एक्ट. ओके, सो डिडक्शन फ्रॉम विच काइंड्स ऑफ रिसोर्सेज के कौन कौन से पर्टिकुलर NSS है, तो NSS कितने अंडर सेक्शन चार्ज होगा अंडर ATC. ओके, सो इन दिस चैप्टर दिस थर्ड चैप्टर विल बी टोटली डिपेंडेंट ऑन थियोरेटिकल पार्ट. जैसे कि मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में ही बोला था, देयर हैज़ बीन इनकम टैक्स यू हैव टू स्टडी के 2 chapters will be dependent on 2 chapter will be dependent on theoretical and 2 chapter will be dependent on practical problems. Okay, the third chapter will be totally dependent on theoretical part, and in third chapter you have to study about deduction which have been calculated under section 80 and what kind of 80 will be 80 under section 80. The incomes will be charged under section 80 of the income tax act 1961. And what is the meaning of rebate, and rebate किसके अंडर sections के ऊपर charge है according to 87A, and relief will be charges on under section 89. So what is the meaning of rebate and what is the meaning of relief? We have to फोकस वेदर वी हैव स्टार्टेड देयर चैप्टर. जब हम ये लो चैप्टर स्टार्ट करेंगे उसी के रिलेटेड हम लोग ये सारे कॉन्सेप्ट कवर करेंगे, लाइक परमिसिबल डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, रीबेट एंड रिलीफ अकॉर्डिंग टू देयर respective sections. Okay, so move forward to our next slide. In next slide you have to last chapter you have to study and you have to see. First of all I will read that chapter name. The chapter name will be computation of gross total income and assessment of companies. Computation of gross total income and असिसमेंट ऑफ कंपनीज़. कि आपको इसमें क्या कैलकुलेट करना है कि ग्रॉस कंपनी की टोटल इनकम कितनी रहती है, और असिसमेंट ईयर में पर्टिकुलरली असिसमेंट ईयर मतलब करंट ईयर की उनकी टोटल इनकम कितनी रहती है और कितने परसेंटेज ऑफ चार्जेबिलिटी रहती है. कि अगर कंपनी के अंतर्गत आप कैलकुलेट कर रहे हो पर्टिकुलरली द इनकम ऑफ अ इंडिविजुअल पर्सन और हिंदू अनडिवाइडेड, तो इस कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम एंड असेसमेंट ऑफ कंपनीज़, तो जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनी अलग अलग विविध प्रकार की जो कंपनीज़ रहती हैं उसकी इनकम टोटल इनकम जो उनकी रहती है वो कैलकुलेट होगी. और उसकी टोटल इनकम पहले हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेटेड द कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ एन इंडिविजुअल एंड हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली. सो इनकी इनकम पर्टिकुलरली चार्जेबल होगी कि इंडिविजुअल पर्सन की टोटल इनकम कितनी, कंपनी के अंतर्गत जो काम कर रहा है उसकी टोटल इनकम कितनी है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सी दैट. एंड जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है जो कॉपरेशन बिजनेस करती हैं, लाइक बहुत सारी जॉइंट स्टॉक कंपनी है तो उसको जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली भी कहा जाता है. तो ये जो जॉइंट स्टॉक कंपनी है इसमें किन की टोटल इनकम कितनी रहती है, कितने परसेंट इनकी चार्जेबिलिटी है, डिडक्शंस क्या हैं, रेट्स क्या हैं, डिबेट्स क्या हैं, इनके जो कौन से यानी कि चार्जेबिलिटी कितनी है, आफ्टर वी कैलकुलेट को टैक्स लिएबिलिटी कितने परसेंटेज में कैलकुलेट होगी. तो ये आफ्टर वी हैव टू व्यू ऑन दैट पर्टिकुलर कंपनीज. द नेक्स्ट इसमें हम लोग कौन कौन से एडवांस प्रॉब्लम्स रहेंगी. फर्स्ट अभी आपको कैलकुलेट टोटल इनकम किसकी करनी है, इंडिविजुअल और हिंदू अनडिवाइडेड. एंड देन नेक्स्ट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज. ओके, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एंड
लास्टली असिसमेंट ऑफ कंपनीज़ के असिसमेंट प्रोसेस, करंट ईयर की कंपनीज़ की परफॉर्मेंस कैसी है, वी हैव टू कैलकुलेट कौन कौन से आइटम्स कंपनीज़ के कैलकुलेट होंगे, कौन कौन से सेक्शंस डिडक्शंस कितनी हैं उनकी, आइटम्स कौन कौन से कैलकुलेट, तो कंपनीज़ का करंट ईयर परफॉर्मेंस क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, लाइक देयर कौन कौन से पर्टिकुलर स्टाफ्स को कितने परसेंटेज में अलाउंसेस प्रोवाइडेबल कर रहे हैं, तो ये सारी हम फोकस करेंगे वेदर वी हैव टू व्यू दैट chapters. So is this last chapter will be totally dependent on practical problems. Okay, so in this session we have to discuss about the syllabus of this subject is income tax. तो इस पूरे सेशंस में लेक्चर में हमने डिस्कस करा था हमारे चैप्टर का, यानी कि सिलेबस ऑफ द इनकम टैक्स. ओके, so I have to thanking to all of you student for hearing me. So if you have to for attendance you have to focus on basic procedure, कि आपको अटेंडेंस के लिए बेसिक प्रोसीजर फॉलो करना है पड़ेगा. For to make your attendance fill up, write your attendance in a comment box. वेदर यू व्यू दैट वीडियो, जब आप ये वीडियो देखेंगे, ये लेक्चर को अटेंड करने के बाद आप लोगों को डायरेक्टली सब्सक्राइब करना है. सब्सक्राइब करने मेरे चैनल करने के लिए आइकॉन वहाँ पे बटन, बेल बटन वहाँ पे मेंशन रहता है. रिसेंटली आपको कोई भी चैप्टर के रिलेटेड हमने कोई भी वीडियोस डाली है अपने, एक लाइक इनकम टैक्स की हमने और कोई वीडियो डाली, एडवांस अकाउंटिंग की वीडियो डाली, तो आपके पास डायरेक्टली इफ़ यू सब्सक्राइब माई चैनल यू डायरेक्टली फाइंड ऑल वीडियोज़ विदाउट अ लिंक. आपको लिंक के बेसिस पे भी नहीं. सो सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड मेंशन इन कमेंट बॉक्स योर डिटेल्स लाइक योर नेम and your group name. Okay, so in the comment box mention that kind of information, and that information will be count as your attendance. So thank you to all of you students for hearing me.